آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل S1 TV۔ دوستو آج میں آپ کو ہسٹری آف ہندوستان کے اس چیپٹر 4 میں قطب الدین ایبک کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے تخنشین ہوا۔ دوستو قطب الدین ایبک سلطنت دلی اور خاندان غلامہ یعنی کہ غلاموں کے دور حکومت کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ غلاموں کا دور حکومت 1206 عیسوی اسی سے شروع ہو کر 1290 میں ختم ہوئی، جو کہ علاء الدین کے بعد پر ہی ختم ہوتی ہے۔ دوستو خاندان غلامہ کا جو بانی تھا یعنی کہ غلاموں کی دور حکومت کا جو بانی تھا وہ قطب الدین ایبک ہی تھا، اور دلی سلطنت کا جو پہلا سلطان تھا وہ بھی قطب الدین ایبک ہی تھا۔ دوستو قطب الدین ایبک چونکہ سلطان شہاب الدین غوری کے غلام تھے، اور اس نے سلطان شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو یہاں ہندوستانی املاک کا اپنا نائب بنایا تھا، اس لیے جب سلطان شہاب الدین غوری کی اچانک وفات ہوئی اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے ہندوستان میں اس کے ترک غلاموں میں جو سب سے زیادہ طاقتور غلام تھا اور بہت زیادہ علاقے اس کے زیر نگی و زیر انتظام تھے، اس لیے وہ جو ہے تخنشی ہوا، وہاں کے امراء نے اس کو تخنشی کیا، اور 1206 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری کے بھتیجے سلطان غیاث الدین محمود نے اس کو سند دے دیا اور وہ باقاعدہ طور پر ہندوستان کا حکمران بنا۔ دوستو اس کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، کون سی مشکلات تھی، کون سے کارنامے سلطان قطب الدین ایبک کے تھے، وہ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے اور یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس لیے تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس پر وقت ملتی رہے۔ دوستو سلطان قطب الدین ایبک 1206 عیسوی کو تخنشین ہوا۔ دوستو سلطان قطب الدین واحد اور وہ پہلے شخص ہیں جو سلاطین دلی اور خاندان غلامہ یعنی کہ غلاموں کی دور حکومت کا بانی ہے۔ دوستو سلطان قطب الدین ایبک کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ اس وقت غور کے ہندوستانی املاک میں بہت سارے علاقے جن میں ملتان، پشاور، اونچا نہروالا، تبرہین، لاہور، سیالکوٹ، مالوا، کنوج، اس کے علاوہ گوالیار، اجمیر شریف، بنارس، کلنجر اور ایسے اور بھی بہت سارے علاقے شامل تھے۔ دوستو ان علاقوں میں جو ترک تھے یعنی کہ سلطان شہاب الدین غوری کے جو ترک غلام تھے، ان علاقوں میں ترکوں کا جو گرفت یعنی کہ تسلط تھا وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ دوستو اس لیے کچھ علاقوں میں ان کا جو گرفت تھا وہ مضبوط تھا، کچھ علاقوں میں کمزور تھا اور کچھ میں ختم ہونے کے برابر تھا۔ دوستو سلطان شہاب الدین غوری کو اس چیلنج کا بھی سامنا تھا، اس کے علاوہ اس کے برابر کے دو جرنیل یعنی کہ سلطان شہاب الدین کے دو اور غلام جرنیل، اس میں سے تاج الدین یلدوز اور نصیر الدین قباچہ تھے، وہ بھی دعویٰ کر رہے تھے۔ جب سلطان شہاب الدین کے بڑے بھائی یعنی کہ سلطان غیاث الدین غوری کی وفات ہوئی تھی، ان کا بیٹا سلطان غیاث الدین محمود تخنشین ہوا۔ دوستو سلطان شہاب الدین کے اچانک وفات ہونے کے بعد یہاں غلاموں میں افراتفری پھیل گئی، اور انہوں نے جہاں بھی گورنر تعینات تھے انہوں نے آزادی کا اعلان کیا اور اپنا خود مختار حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو دوستو سلطان محمود نے بھی جو غزنی سلطنت تھا اس کو بھی سلطان شہاب الدین غوری کے غلام تاج الدین یلدوز کو اس کو املاک تقسیم کرنے کے لیے املاک کے سلسلہ میں اس کی توثیق کر دی اور اس کو غلامی سے رہائی کا جو ہے ایک پروانہ عطا کیا۔ اس طرح اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی اور غلاموں کے مقابلے میں۔ دوستو اس کی پوزیشن اس لیے مضبوط ہو گئی کہ جو ہندوستان کے املاک تھے، غوری املاک، وہ بھی چونکہ غزنی ریاست کا ایک حصہ تھا، اس لیے وہ قانونی طور پر دعویٰ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس کو جب سند مل گئی سلطان غیاث الدین محمود کی طرف سے، تو اس نے غزنی سے پنجاب پر قبضہ کرنے اور اس کو فتح کرنے کی نیت سے روانہ ہوا۔ دوستو سلطان قطب الدین ایبک کو جب اطلاع ہوئی تو وہ بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کو شکست دیا۔ دوستو شکست کھانے کے بعد وہ کہکشاں باغ گیا اور سلطان قطب الدین ایبک نے غزنی پر دعویٰ بول دیا اور وہ غزنی چلا گیا۔ دوستو وہاں سلطان قطب الدین ایبک نے خوشیاں اور جشن کا انعقاد کیا اور ریلیوں میں مصروف ہو گیا۔ دوستو اسی موقع کو غنیمت جان کر غزنیوں کے عوام نے قطب الدین ایبک کو زیر کرنے
के लिए ताजुद्दीन यलदेव से रब्ता किया और उसको गजनी पर हमला करने के लिए एक खत भेजा। इसमें उन्होंने कहा कि आप ये एक सुनहरा मौका है, आप यहाँ गजनी पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं खुशियों और रैलियों में मसरूफ हैं, इसलिए आप यहाँ आकर दावा बोल दें। दोस्तों ताजुद्दीन यलदौज ने गजनी के मज़ाफ़ात में कुतुबुद्दीन ऐबक को हिरासत की और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया और हिंदुस्तान की जानिब भाग गया। दोस्तों और यूँ जो टलता हुआ ख़तरा था यलदौज का, वो फिर से जो है उभर गया और वो फिर से नए सिरे से सामने आकर रह गया। दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक भी लाहौर की जानिब वापस आया और यहाँ सुकूनत पजीर हुआ। दोस्तों उसके बाद उसने लाहौर को दारुस्सल्तनत बनाया, वो इसलिए कि लाहौर जो है वो दिफाई लिहाज से उसकी जो जोग्राफियाई लिहाज था वो बहुत ही मजबूत था। उसने ये समझा कि अब लाहौर को दारुस्सल्तनत बनाया जाए, इसलिए उसने लाहौर को दारुस्सल्तनत बनाया। दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का अजमाली तौर पर हिंदुस्तान के उसकी ज़िंदगी में तीन अहम यानी कि तीन नुमायाँ अदवार हैं। दोस्तों पहले दौर में 1192 ईस्वी से लेकर 1206 तक वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की जानिब से शुमाली हिंदुस्तान का ऑफिसर और इंचार्ज रहा। दूसरी दौर में वो 1206 से लेकर 1208 तक गैर रस्मी इक़्तिदार आला के तौर पर वो ममलूक यानी कि गौरियों के हिंदुस्तानी इमलाक का नायब और मालिक रहा, जो लाहौर और दिल्ली के मातहत थी। इसके अलावा तीसरे दौर में 1208 से लेकर 1210 तक वो हिंदुस्तान की रियासत का खुद मुख्तार यानी कि ये जो गौरियों के हिंदुस्तानी इमलाक थी उसका खुद मुख्तार हुक्मरान रहा। दोस्तों ये बताना मुश्किल है कि इन अदवार में कौन सा दौर उसका जो है अहमियत का हामिल है, लेकिन आपको ये बता दें कि पहले दौर में उसने फौजी सरगर्मियों, दूसरे दौर में हिंदुस्तान की सियासी जोड़-तोड़ और तीसरे दौर हुकूमत में उसने दिल्ली के सल्तनत के लिए एक मजमल खाका तैयार किया। दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का बहुत ही वफादार गुलाम था, इसलिए सुल्तान शहाबुद्दीन की जो हिंदुस्तानी मुहिम्मात थे और उनका जो अज़ाइम में जो पुख्तगी का हिस्सा था, इसके साथ साथ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का भी वफादारी का इससे ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि उसके अज़ाइम जितने पुख्ता थे उससे ज़्यादा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफादारी भी थी। इसलिए कि जब शहाबुद्दीन गौरी जो भी हुक्म मुरतब करते, जो भी हुक्म जारी करते, सुल्तान कुतुबुद्दीन यानी कि उसका ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उस पर अमल पेरा होकर उसको यहाँ नाफिज़ करते। दोस्तों इसके अलावा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी यानी कि गौरी हुकूमत जो थी वो मशरिकी एशिया और हिंदुस्तान पर मौजूद बहुत फैली हुई सल्तनत थी, इसलिए जब भी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को मरकज़ी एशियाई मुहिम उसकी हिंदुस्तानी मुहिम में रुकावट बन जाती या उसमें हायल हो जाती, तो उसके मुहिम्मात को आगे बढ़ाने और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की तवसी यानी कि उसकी सल्तनत को वसी करने का जो पॉलिसी थी वो उसको सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ही उसके गैर हाज़िरी में यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में उन मुहिम्मात को संभालते। दोस्तों यही वजह है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मरकज़ी एशियाई में मुहिमों के दौरान यहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत सारे शुमाली हिंदुस्तान के इलाके कुतुबुद्दीन ऐबक की क़ियादत में बहुत सारे लश्कर दिए थे और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनकी सरबराही में यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में शुमाली हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाके फ़तह किए थे, जिसमें दिल्ली, बनारस, अजमेर और भी बहुत सारे इलाके ये इलाके सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही फ़तह किए थे। दोस्तों इसके अलावा जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की वफ़ात हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने ज़राए पर ही खुद मुख्तार होना पड़ा और इसके बाद उसकी वफ़ात के बाद जो सल्तनत में जितनी भी बेचैनी फैल गई थी और अफरा-तफरी और चंद तुर्की ग़ुलामों ने यानी कि शहाबुद्दीन गौरी के जितने भी जनरल और आला मकाम के ग़ुलाम थे, उन्होंने बगावत यानी कि अपने लिए एक आज़ादाना रियासत कायम करने की कोशिश की। सुल्तान शाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन ग़ुलामों को ज़ेर किया और गौरियों के यानी हिंदुस्तानी इमलाक को एक नए सिरे से जोड़ दिया। दोस्तों 1206 ईस्वी में जब
सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक तखनशीन हुआ तो उसने नए इलाकों को फ़तह करने के बजाय जो उसके मफ़तूहा इलाके थे उनकी तरफ तवज्जो दी। वो इसलिए कि वो चाहते थे कि यहाँ इन इलाकों को दिल्ली की सल्तनत के ज़ेर किया जाए, इनके लिए एक नया ढांचा तैयार किया जाए। इसलिए कि ताकि उनके बाद जो भी सुल्तान आए उनको इस किस्म के मसाइल दरपेश ना हो जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका सामना किया, जैसे कि गुलामों की तरफ से जो है खुद मुख्तारी का ऐलान, दावेदार इस तरह जो है सल्तनत टुकड़े में मुनक़सिम ना हो। इससे बचने के लिए उन्होंने मज़ीद इलाकों को पता नहीं किया, इसलिए उन्होंने यहाँ के लिए मजमल खाका तैयार करने को तरजीह दी। दोस्तों इसके अलावा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी ही दानिशमंदी से हिंदुस्तान के सियासी हालात को संभाला और शहाबुद्दीन गौरी के भतीजे यानी कि गयासुद्दीन महमूद उसके आला जर्नल गुलामों को जो है बहुत ही दानिशमंद तरीके से उनको ज़ेर किया और अपने ज़ेर इंतज़ाम किया और उसको ज़ेर करके अपने मातहत किया। दोस्तों इसके अलावा हिंदुस्तान में मौजूद कुतुब मीनार, दोस्तों कुतुब जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम यानी कि कुतुब मीनार ये इसके नाम पे है और इसकी शुरुआत यानी कि तामीराती काम भी कुतुब मीनार की जो तामीराती काम है इसका बुनियाद और इसकी तामीराती काम को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था। दोस्तों बाद में इसको दूसरे उसके बाद तखनशीन होने वाले सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश ने ही इसको पूरा किया था। दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी कि उसको लाख बख्श का खिताब भी दिया जाता है, इसलिए कि वो गरीबों और मिस्कीनों में लाखों के इनामात चंदे ज़कात बहुत सारे इमदाद गरीबों की करते थे, इसलिए उसको बहुत ही दोस्तों मौरखीन ने उसको बहुत ही सखी फयाज आदिल और वफादार इंसान कहा है। दोस्तों 17वीं सदी तक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की फयाज़ी की मिसालें दिया करते थे। दोस्तों मौरखीन के मुताबिक उस वक्त में हिंदुस्तान में दूर दराज तक यानी दक्कन तक कुतुबुद्दीन ऐबक की सखावत की लोग मिसालें दिया करते थे। दोस्तों ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ कारनामे जिससे हमने आपको आगाह किया। दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात 1210 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों उसका जो वफ़ात थी वो कुछ यूँ थी कि वो चौगान खेल रहा था और वो घोड़े से गिर गया था और वो गिरते ही एक नोकीली चीज़ उसके पसली में घुस गई, उसकी वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की इस अचानक वफ़ात से उसने कोई जानशीनी के बारे में या अपने जानशीन के बारे में कुछ नहीं कहा था, इसलिए सल्तनत दिल्ली के उमरा ने इस बात की नज़ाकत को समझते हुए और अपनी रियासत के अफजल तरीन मफाद को मद्देनज़र रखते हुए उसके बेटे आराम शाह को तख्त पर बिठाया। दोस्तों इस बात की कोई दलील नहीं है कि आराम शाह सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। दोस्तों रिवायात के मुताबिक और मौरखीन का ये कहना है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियाँ थी और उसकी कोई नरीना औलाद नहीं थी। इनमें से इनकी 3 बेटियों में से एक का निकाह सुल्तान अल्तुमिश से हुआ था, जो बाद में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तखनशीन हुआ था। दोस्तों हम आराम शाह के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों जब आराम शाह तखनशीन हुआ और बाकी तुर्क गुलामों को जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के अचानक वफात के बारे में खबर हुई तो हिंदुस्तान के मुस्लिम रियासत जो नौज़ायदा रियासत थी वो ख़तरे में पड़ गई और एक तरह का इंतशार जो है फैल गया और अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि बाकी तुर्क जनरल भी अपने दावे के मुताबिक अपनी आज़ादाना रियासतों और हुक्मरानों की तैनाती चाहते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने जो है जो खिलजी उमरात थे उन्होंने बंगाल में लखनऊती में अपना आज़ाद रियासत कायम किया और वो जो नसीरुद्दीन का बादशाह थे उन्होंने मुल्तान से लेकर समंदर तक का सारा इलाका जिसमें मुल्तान था, बकर फरिश्ता के मुताबिक ये सारे इलाके उन्होंने जो है ऊंचा नरवाला इन इलाकों पर कब्जा करके आज़ादाना रियासत कायम की और इस तरह जो इसकी रियासत की जो दौर था ये मुश्किल से मौरखीन के मुताबिक 8 महीने तक बरकरार रहा। उसके बाद सुल्तान अल्तमिश तखनशीन हुआ। दोस्तों सुल्तान अल्तमिश
کیسے تخنشین ہوا یہ ہم آپ کو اگلے چیپٹر میں بتائیں گے، یعنی کہ چیپٹر 5 میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سلطان التمش کو کس نے بلایا اور کس کے کہنے پر وہ آیا اور یہاں جو ہے ہندوستان کے جن ترکی غلاموں نے جی یہاں پہ قبضہ کیا تو اس کو کیسے ختم کیا اور وہ کیسے تخنشین ہوا اور یہ جو جتنے بھی علاقے تھے اس کو نئے سرے سے کیسے جوڑ لیا اور اپنے سلطنت کو کیسے مستحکم بنایا۔ دوستو اگر آپ بھی اس ویڈیو اور اس تاریخ کے بارے میں حقائق سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔